नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. जिस तरह पहले हमने समझा और कि प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पर्सन्स. What is scalar chain? Scalar chain is that it is a chain which is to be followed in the company as a hierarchy. Hierarchy का मतलब कि according to the power and position. जैसे कहा जाता है कि आपने A से B में जाना है. Like example, if I am saying कि this diagram is given. Scalar change is that if there are different departments A, B, C, D, E, and on the same side the other departments are there F, G, H, I, J. Now if D department has to communicate with something to the I department, and according to the rule of hierarchy, D has to communicate to C, C will communicate to B, B will communicate to A, and then A will communicate to M, M to F, F to G, G to H, and then to I. It is a long procedure as it will take lots of time also, and it is quite possible that there may be some emergency. Like we can say that D department, if I take the example, the D department is the department who purchases the raw materials for the factory for the production, and I department is the sales department. Now raw materials department have to communicate something to the sales department that you should, it may be possible that due to some mishappening the raw materials are not coming in the factory, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ से हम रॉ मटेरियल्स लेके आते थे उस फैक्ट्री में कोई आग लग गई है जिसके कारण जो है वहाँ से सामान अब नहीं आ पाता. तो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल्स डी डिपार्टमेंट ने आई डिपार्टमेंट को ये बात कम्युनिकेट करनी है दैट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, सो द सेल्स शुड बी स्लो डाउन, सो दैट इन द मार्केट इट इज नॉट दैट कि ये ना हो कि एक महीने के अंदर हमने सारी सेल्स कर दी और नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है वो हम मार्केट में स्टॉक ना पहुंचा सके. So in case of such kind of emergency, if this thing is communicate with the help of hierarchy means according to the order, it will take lot of time. So at this time, in case of emergency, it is given Fayul principle, means the principle is said that D can communicate with I with the help of the rule which is called gang plan. Gang plan is a rule with which the one department can communicate with the other department only if it is in case of emergency. अगर नॉर्मल बात है, नॉर्मल रूटीन की चीजें हैं तो वो ऑब्वियसली रूल के थ्रू ही और चेन के थ्रू ही जाएंगी, विच आई एक्सप्लेन टू यू दैट D to C, C to B, B to A, like this change. But only in case of emergency, one department can communicate with the other department so that there is no delay in the decision making. That is also possible with the help of gang plan. Next, coming on to the principle of order. Principle of order states, what is principle of order? Principle of order states that everything, that there should be a place for everything and everyone in an organization, and that a person should be found in its allocated place. Simply we can say that principle of order states that every person, everything should be kept at a proper place and it should be available at proper time. हर चीज को सही जगह पे रखा जाए ताकि वो सही टाइम पे जो है वो हमारे को मिल जाए. राइट पर्सन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स राइट पर्सन एट राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम. हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हमने देखा है कि शॉप पे जब भी हम कोई चीज की डिमांड करते हैं, if I say we go to chemist shop and when we demand the thing, any medicine, तो वो उसी टाइम जो है वो शॉपकीपर जो है वो निकाल के देता है. वो ऐसे नहीं है कि वो ढूंढने बैठ जाता है, एक एक डब्बों को खोलने बैठ जाता है या एक एक चीजों को खोलता है और मेडिसिन फाइंड करता है. ही हैज ऑर्गेनाइज द थिंग्स वेरी प्रॉपरली कि ये वाली मेडिसिन इधर पड़ी है और ये वाली मेडिसिन की चीजें इधर पड़ी है. सेम थिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर सेज दैट राइट पर्सन मीन्स अ पर्सन who is properly qualified to do that work. Right person should be at right place and at right time.
अगर किसी की वैकेंसी क्रिएट हुई है या कोई बंदा रिटायर होके गया है तो उसकी जगह पे जल्दी से जल्दी जो है वो पर्सन को है वो रिक्रूट करना चाहिए, सो दैट काम जो है वो पेंडिंग ना बने। सो राइट पर्सन, सही बंदा सही टाइम पे सही काम के लिए अगर रखा जाएगा तो अल्टीमेटली काम भी प्रॉपरली कंप्लीट होगा। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर सेज दैट राइट पर्सन and right thing also. It says about the person and thing, that right person at right place and at right time, so that the proper work is done at right time. Next, coming on to the principle, that is principle of equity. Principle of equity, equity, the word is clear to you. Equity matlab equal treatment. There should be no biasness, there should be no partiality, no biasness फॉर टूवर्ड्स द एम्प्लॉइज। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपका फ्रेंड है और रिलेटिव है और आपने आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके लिए लीनियंट है और बाकी के लिए जो है वो स्ट्रिक्ट है। सो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी स्टेट्स दैट ऑल द एम्प्लॉइज शुड गेट इक्वल ट्रीटमेंट and also it is said that the rules and regulations should be same for everybody. That comes under the principle of equity. Next, coming on to the principle of stability of tenure of personnel. Principle of stability of tenure of personnel states that a person should remain at its place at where he is working for some time period. एक पर्सन को एक जगह पे आपने जहां पे उसको बिठाया है काम करने के लिए, आप उसको काफी देर तक वहां पे रहने दो। इट इज नॉट दैट कि आफ्टर 6 months you are changing the position of the person, either you are transferring that person to any other place, or you are ultimately promoting a person or demoting a person. इससे क्या होगा? इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू सिट एट द वर्क प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अ पर्सन विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वर्क। आज हमने किसी को 6 महीने के लिए एक जगह पे बिठाया, 6 महीने तक उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, उसको काम समझ में आना शुरू हुआ तो हमने उसकी ट्रांसफर कर दी किसी और डिपार्टमेंट में। उसने किसी और डिपार्टमेंट में मन लगा के काम करना शुरू किया और उसको समझ आनी शुरू हुई तो हमने फिर क्या किया? वी चेंज to the other department. Like this, if we are changing the position of the person again and again, it gives you two things. A person will get a doubt in his mind that क्या मुझे निकालना चाहते हैं? Are the company want to remove me? That's why shifting me from one place to another. And the second thing is that a person will either stop working hard. उसको ये होगा कि मुझे हर 6 महीने के बाद तो मेरी जगह चेंज हो जाती है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ हार्ड वर्क करने की या अपनी एफिशिएंसी करने की। सो इफ वी वांट दैट पर्सन शुड बी मोटिवेटेड टू डू द वर्क प्रॉपरली विद हार्ड वर्क एंड एफिशिएंसी, वी शुड प्लेस अ पर्सन एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि 6 महीने तक अगर उसकी ट्रेनिंग चली, उसको काम समझ में आना शुरू हुआ, जब उसको काम समझ में आना शुरू होगा तो अल्टीमेटली वो काम में इंटरेस्ट लेगा और काम में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, एनी डिफिकल्टीज, एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, द पर्सन विल बी एबल टू सॉल्व द थिंग्स और उसका काम में मन लगना शुरू होगा। he will feel self motivated and he will enjoy the work because now he know the work properly and he is able to understand the work, and when he is able to understand the work he start loving the work, and when he starts loving the work he gets motivated and do the work with proper encouragement. So this is stability of tenure. tenure का मतलब टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड एक बंदे के लिए उस पोजीशन पे। स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबल, मेक अ पर्सन डू द वर्क एट इट्स पोजीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा अगर ट्रांसफर्स और प्रमोशंस होते हैं तो कम से कम 4 या 5 साल के बाद होते हैं। उसके पीछे यही होता है रीजन कि पर्सन जो है वो अपना काम जो है वो इतनी लॉन्ग पोजीशन पे अच्छे टाइम अच्छी तरह करे। सो नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द principle of initiative. Principle of initiative says that we should take suggestions from the employees. Initiative का मतलब employees को आगे लेके आओ कि वो अपनी suggestions दें,
मोटिवेट करो एम्प्लॉइज को दैट दे शुड कम आउट विद द सजेशंस, बिकॉज the planning officer does not know the actual practical problem what workers are facing. workers को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो एग्जैक्टली में जब तक वो नहीं बताएंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी. तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, अगर प्लानिंग ऑफिसर ने कोई प्लान किया है तो वर्कर्स को इनिशिएट करें दैट दे शुड कम आउट विद देयर सजेशंस एंड प्रॉब्लम्स सो दैट वी आर एबल टू क्लैरिफाई इट और काम को और इजी जो है वो किया जा सके. बिकॉज अल्टीमेटली प्रैक्टिकल काम वर्कर्स ने करना है, प्लानिंग वाले ने तो सिर्फ प्लानिंग करनी है. सो वर्कर्स शुड बी मोटिवेटेड टू कम विद देयर सजेशंस. नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ एस्प्री डी क्रॉप्स. एस्प्री डी क्रॉप्स सेज दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ. This is the last principle of Fayol's. Ultimately we know that unity is strength. इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो काम अचीव होगा, अगर हम अकेले अकेले काम करेंगे तो काम अचीव नहीं होगा. If the Indian cricket team plays collectively, the team will be able to win the match. But if the team, every player says that I have to play well, और अलग अलग अपने बारे में सोचेंगे तो हो सकता है कि मैच ना जीता जा सके. सो यूनिटी इज द स्ट्रेंथ. इकट्ठे मिलके कंपनी में काम करना है, ठीक है. देयर शुड बी नो फाइट्स, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशंस, एंड ऑल्सो दिस शुड बी टेकन प्लेस बाय द मैनेजर ऑल्सो, दैट ऑल द वर्कर्स आर वर्किंग कलेक्टिवली. थैंक यू.